मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए गलगोटिया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर साहब से एक अनुरोध करता हूं। जम्मू कश्मीर के भी काफ़ी विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर उनको थोड़ी रियायत आप देंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार मानूंगा। It is my greatest honor that the Honorable Governor has suggested that the university allows some scholarship to Jammu and Kashmir students. So with utmost gratitude to him for this idea, I hereby announce that for all students of Jammu and Kashmir, we will offer a 50% scholarship for all camps. Thank you. राज्यसभा के माननीय सदस्य, उत्तर प्रदेश के अत्यंत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अशोक वाजपेयी जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुनील गलगोटिया जी, वाइस चांसलर डॉक्टर के मल्लिकार्जुन बाबू, प्रो वाइस चांसलर श्री अवधेश कुमार जी, सीईओ डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया जी, सभागार में उपस्थित इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर संस्करण में भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स, विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर संस्करण में आपके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर वाजपेयी जी और गलगोटिया जी के कारण मिला। इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लीडरशिप और टीम, सभी इनोवेटर्स तथा फैकल्टी मेंबर्स को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया, आज से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण के ग्रैंड फिनाले देश भर के 51 केंद्रों पर औपचारिक शुरुआत हुई। यह भी एक तथ्य है कि हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए जिन जिन नोडल सेंटर्स को चुना जाता है, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम जरूर रहता है। इनोवेशन के लैंडस्केप में इस यूनिवर्सिटी के योगदान के लिए मैं यहाँ की लीडरशिप का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में देश के 9 राज्यों से 210 पार्टिसिपेंट्स और 35 टीमें भाग ले रही हैं, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए क्रिटिकल प्रॉब्लम्स पर काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि इन क्रिटिकल प्रॉब्लम से जुड़े सॉल्यूशंस आम आदमी के जीवन इस तरह से प्रभावित करेंगे जिनकी हम आज पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर सकते। Friends, I strongly believe our innovations must lead us to social change. If you look at our journey from cave dwellers to urban inhabitants, you will find the pace of inventions was slow. It was related only after the first industrial revolution, and right now we are going through the 4th industrial revolution, which is fastest in terms of innovations and historic breakthrough in quantum computing to advances in artificial intelligence and augmented reality. This also means that we have the most powerful tools available with us to address a wide spectrum of economic growth challenges. We need cutting-edge technologies to be the leading nation, and at the same time we need environmental friendly innovations for sustainable development. For Industry 4.0 factories to mitigate the social changes of food, water, environment, energy, we need intelligent and integrated devices
Better system integration and smart factories will be the most dynamic aspect of Industry 4.0, involving physical equipment and digital tools, and also it will be the best example of collaboration between human and technology. All the core components of Industry 4.0 technology, Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Advanced Robotics, Additive Manufacturing, and Simulation will also profoundly impact traditional area of space, atomic energy, and defense technologies. We have now set before ourselves the goal of transforming India into a developed nation by 2047. In order to achieve this goal, we need knowledge, capability, and commitment of innovators, collaborations of institutions, support for new ideas, and commercialization of grassroots innovations. And we should ensure that fruits of new inventions reach all sections of society. Nothing can stop our country from making rapid strides in different sectors of the economy in the coming decades, but this effort requires one condition: your courage, your dedication, your talent, and your zeal to explore unknown. And I see all these qualities in abundance when I see young innovators here in this Smart India Hackathon event. I have always admired the spirit of inquiry and search for excellence in youth. And the search for excellence in youth, and I am confident this hardware edition will provide you a perfect platform to turn your ideas into tangible prototypes and subsequently into a refined product. I am also eager to see that ideas germinated here in Galgotia University become agents of transformation in the coming future. साथियों, मैंने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के अलग अलग सेंटर से आयोजित होने वाले इवेंट्स के जिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखा है, वास्तव में वो प्रेरित करने वाला है। हार्डवेयर की रोबोटिक्स तथा ड्रोन कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऐसे ड्रोन तैयार करना चाहते हैं जिनका रिस्पांस टाइम बहुत ही कम होगा। ऐसा ही ड्रोन सॉल्यूशंस नेचुरल डिजास्टर की स्थिति में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लक्षित किया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इवेंट में आज चिन्हित किए गए क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए के अलावा अन्य नोडल सेंटर्स पर हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट ऑटोमेशन, एग्रीकल्चर एंड फूड जैसे अनेक क्षेत्रों की प्रगति और उससे जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए हार्डवेयर एडिशन निश्चित रूप से नए सॉल्यूशंस प्रदान करेगा। मैंने अलग अलग सेक्टर्स में इनोवेट किए जाने वाले हार्डवेयर इनोवेशन की लिस्ट देखी है और मैं कह सकता हूँ कि हमारे इनोवेटर्स उन प्रोडक्ट्स पर निश्चित रूप से विशेष ध्यान दे रहे हैं और ये आने वाले दिनों में अभूतपूर्व होगा। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमतायुक्त स्मार्ट योगा मैट विकसित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इस मैट को योगा प्रैक्टिशनर के स्मार्ट वॉच के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जो योग के अनुभव को बढ़ाने और उसे और इंटरैक्टिव बनाने में निश्चित रूप से मदद करेगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेटर सेंसर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जो मिट्टी की नमी के स्तर और मौसम की स्थिति की निगरानी करेंगे और देश के किसान भाइयों को इरिगेशन शेड्यूल के लिए रियल टाइम डेटा भी प्रदान करेंगे। थर्मल पावर प्लांट से कार्बन इमिशन कम करने के लिए हार्डवेयर टूल्स हैकाथॉन प्लेटफॉर्म द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन में आने वाली गंभीर चुनौतियों को हल करने के अलावा राष्ट्रीय प्राथमिकता से के क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के लिए भी समाधान प्रस्तुत करेंगे। Friends, I am really proud of the fact that nowadays tens of thousands of youths around the country are making valuable contributions
to the areas of their specialization, which also reflects in the increase of patents granted in the past 2 years. Also, the increase in filing of patents and trademarks shows focus towards local innovations, strengthening of our domestic innovation ecosystem, and a boost to Atmanirbhar Bharat campaign. Your innovation does not have to be big. I think small ideas can make a big impact. Do you remember the innovation of wheels for suitcase? Bernard Shadow had invented this in 1970 and called it rolling language. This happened 5,000 years after the invention of wheel and a year after Apollo 11 had landed on the moon. Today, the global rolling luggage market size is estimated to be $39 billion. The seat belt was invented in 1959 by Niels Bohlin, and today seat belt market size is valued approximately at $11 billion. In 1959, Robert Noyce had invented the first silicon circuit chip, and today the global microchips market size is around $87 billion. What I am trying to tell you is that all the big innovations started as something very small. No idea is insignificant. In fact, they are priceless and may turn out to be path-breaking discoveries. There is a sloka in Rig Veda, Akutin Satya Manaso Mayast. May my ambition attain success. I have full confidence in your ability and capability, as well as in your resolve to fulfill the ambitions and become the crucial partner in the development efforts. साथियों, मैं कह सकता हूँ पिछले 10 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में इनोवेशन लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया है और भारत इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन में ग्लोबल लीडर्स की श्रेणी में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। एकेडमिक लेवल पर हमारी सोच में भी बदलाव आया है। हमने इस तथ्य को स्वीकार किया है, इनोवेशन ही भविष्य में समाज का संपूर्ण कल्याण कर सकेगा तथा आर्थिक विकास को आवश्यक गति भी देगा। आज देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तथा प्राइवेट सेक्टर मिलकर के नई टेक्नोलॉजी तथा नए इनोवेशन के लिए डिजाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट इन तीनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज हमारे इनोवेटर्स लोकल समस्याओं के समाधान के साथ साथ ग्लोबल कम्युनिटी के जीवन को अपने इन्वेंशन से निश्चित रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस दिशा में आइडियाज को इंक्यूबेट करना, स्मार्ट इंडिया हैकाथन जैसे प्लेटफॉर्म से निकले हार्डवेयर को कमर्शियल स्वरूप प्रदान करने में सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे। एकेडमिक स्तर पर इनोवेशन की लोकप्रियता का अंदाज बात से भी हम लगा सकते हैं कि ग्रैंड फिनाले से पहले इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथन में इंस्टीट्यूशन लेवल पर आयोजित होने वाले इंटरनेशनल हैकाथन में 240% की वृद्धि दर्ज की गई। इंस्टीट्यूट लेवल पर इस वर्ष 86,000 टीम्स ने भाग लिया और नेशनल लेवल राउंड के लिए 49,000 स्टूडेंट्स टीम ने हिस्सा लिया। इसलिए मैं मानता हूं कि यह आयोजन फ्यूचर इनोवेटर्स तथा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां आइडेंटिफाई किए गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अलावा भविष्य के नए इंसाइट्स तथा नए आइडियाज भी जन्म लेंगे। समाज और राष्ट्र की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने तथा जय अनुसंधान के संकल्प को साकार करने के लिए एकेडमिया, इंडस्ट्री तथा पॉलिसी मेकर्स की साझेदारी मजबूत होती है। मैं इस आयोजन को कैंपस के भीतर पूरे वर्ष चलने वाले इनोवेशन के रचनात्मक आंदोलन के उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में भी देखता हूँ। मैं हैकाथन को
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री के बीच पैदा हुए गैप को भरने के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी देख रहा हूं। और मैं मानता हूं कि कई दशक तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री के बीच जो तारतम्य टूटा था या जो खाई पैदा हो गई थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इनोवेटिव माइंडसेट ने युवाओं द्वारा ऐसे सॉल्यूशंस पर बल दिया है जो बिजनेस तथा सोसाइटी दोनों को प्रभावित कर रही है। मित्रों, आजकल लगभग हर दिन हम ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सुन रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करने के साथ साथ सर्विस से लेकर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबको बदलने की क्षमता रखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस वर्ष 17 ऐसी अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी और सेक्टर्स की लिस्ट पब्लिश की है जो वैश्विक परिवर्तन को प्रभावित करेंगे। प्रोफेशनली एक इंजीनियर होने के नाते मैं जब भी ऐसी रिपोर्ट या खबर पढ़ता हूँ तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल मन में आता है, व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट सॉल्व? व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस सॉल्यूशन? व्हाट इज सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन? What is the commercial feasibility and what kind of opportunity it will provide to explore future trends? The next big revolution that is unfolding in the world is the advances in biotechnology. We need to ensure food security, protect the crops from the impact of climate change. Being the most populous country on earth, we aspire to be one of the leaders of this revolution, to feed the people and to make sure that agriculture sector contributes to GDP growth of our country. We also need innovations that will benefit society at large, like water conservation, energy conservation, waste management, precision agriculture, and the life sectors, and e-governance too. These are also some of the areas of social sector where I believe your ideas can make impactful contributions. किसी भी इनोवेशन में दो बातें प्रमुख रूप से मैं देखता हूं। पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। इनोवेशन needs to touch the lives of the common man and it should drive India's economic growth. इसलिए इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी को मैं सिर्फ स्ट्रीट व्यू या डिजिटल एवं फिजिकल एक्सपीरियंस के गैप ब्रिज करने के रूप में नहीं देख रहा है। मेरी अपेक्षा है कि इस टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस अलग अलग सेक्टर्स में डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल में भी योगदान दे सके। मैं चाहता हूं कि ऑगमेंटेड रियलिटी हमारे मैन्युफैक्चरर्स की मदद करे और उनकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन डाउन टाइम का सॉल्यूशन तलाश करने में उनकी मदद करे। सभी युवा इनोवेटर्स इस बात से वाकिफ हैं कि छोटे छोटे शहर आज ऊर्जा के उपयोग की चुनौतियों से निपटने के लिए स्मार्ट ग्रिड जैसे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। उस दिशा में आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने अन्य सेक्टर्स में हमारी प्रगति के लिए सबसे रिलायबल सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम किया है। क्या हम ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर सेक्टर में सॉइल हेल्थ और पेस्ट इन्फेस्टेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी देश के किसान भाइयों को प्रदान कर सकते हैं? क्या हम इसे एक देश की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले भविष्य में रियल टाइम डेटा महत्वपूर्ण योगदान देगा और इसलिए मैं मानता हूं इस एरिया को युवा इनोवेटर्स द्वारा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसको याद रखिएगा हमेशा कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम आइडियाज को कैसे सामाजिक रूप से उपयोगी और कमर्शियल रूप से व्यवहारिक बना सकते हैं। विजिबल एप्लीकेशन, वायबल एप्लीकेशन में कैसे इसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, मुझे बहुत पसंद है, कल्टिवेट मैडनेस एंड मैजिक इट अराउंड द सेंटर, अराउंड द कॉर्नर। मैडनेस से मेरा तात्पर्य है कि सभी स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स
एक्शन ओरिएंटेड लक्ष्य जरूर तय करें। देश के आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में हम भी योगदान देंगे, इस भाव से काम करें। मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आसान प्रेडिक्शन की दुनिया से बाहर निकलिए, ये समय की आवश्यकता है, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपने आइडियाज का आधार बनाइए। मुझे विश्वास है यही आपके इनोवेशन को यूनिक बनाएगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी मेंटर्स, फैकल्टी मेंबर्स और इनोवेटर्स से दो निवेदन और करना चाहूंगा जो भविष्य में आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करने पर आप विचार कर सकते हैं। पहला, अपने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फर्स्ट पर फोकस करने के लिए प्रेरित करिए, न कि प्रोडक्ट फर्स्ट पर, ताकि नए आइडियाज का एप्लीकेशन बिजनेस को स्टेब्लिश करने के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था को भी देश की नई ऊर्जा दे सके। दूसरा निवेदन मेरा होगा, कैंपस से ही एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को प्रमोट करने की जरूरत आज महसूस की जाएगी। अगर आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक स्टार्टअप आज शुरू हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 33% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू हो रहे हैं, और उन 33% स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स में 51% एंटरप्रेन्योर्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। एक प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर बिल ग्रॉस कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एकमात्र वो माध्यम है जो ह्यूमन कैपेबिलिटी को अनलॉक करके समाज को समृद्ध तथा संसार को एक बेहतर जगह बना सकता है। लेकिन उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जरूरी है युवा एंटरप्रेन्योर्स की मेंटरिंग भी ठीक ढंग से की जाए। हमारे देश में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज बन सका है, और वैल्यूएशन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन में आज पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गए। आज भारत स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता है, और लगभग 45% स्टार्टअप्स फाउंडर ने यूनिवर्सिटी कैंपस से ही अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करना शुरू किया है। मैं मानता हूं कि एक एस्पिरेशनल इंस्टीट्यूशन को टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रहे परिवर्तन के प्रति संवेदनशील और भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति सतर्क होना ये बड़ा आवश्यक है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में वह सतर्कता नजर आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपके सॉल्यूशंस विकसित भारत की यात्रा को निश्चित रूप से नई गति देंगे तथा विकास की आखिरी कतार में खड़े हुए भारत के आम नागरिक के जीवन को भी निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। दो बात करके मैं खत्म करूंगा। आज दुनिया भर में हमारे यहाँ भी नॉलेज इकोनॉमी की बड़ी चर्चा है। मुझे लगता है कि हमारा ही देश एकमात्र देश है जिसको प्राचीन काल से इसका अनुभव है, और भी दुनिया के कुछ बड़े प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट ने जो स्टडी की, एक बात प्रमुख रूप से उभर करके सामने आई है कि 11वीं शताब्दी में ग्लोबल जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था भारत का अप्रोक्सीमेटली 33 to 34% था। 11वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ। 15वीं शताब्दी आते आते वो कंट्रीब्यूशन घटकर 25% हो गया। उसके बाद वो दौर शुरू होता है आक्रमणों का। आक्रांत आए, हमारा यश, वैभव, धन संपत्ति लूट करके ले गए, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि जब आजादी मिली 1947 में, तो 1950 का जो आकलन है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में 4% रह गया, 4%। वक्त ने फिर करवट बदला है, और पिछले 10 सालों की जो देश की यात्रा है, 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक सर्वे के मुताबिक आज भारत का कंट्रीब्यूशन 15%। अभी यात्रा हमारी नए सिरे से जब विकसित भारत हमें बनना है, फिर से हमारा कंट्रीब्यूशन 25%, 35% कैसे पहुंचेगा, ये भारत को करना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ दुनिया में ऐसे शिक्षण संस्थान थे
दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण हमारी शिक्षा प्रणाली सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो लंबे समय तक हमारे लोगों का वास्ता रहा, जिसके कारण हम अपनी जो मौलिकता थी वो खो बैठे थे। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद युवा पीढ़ी को जो सबसे अमूल्य उपहार मिला है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। आग्रह करूंगा, मैं जानता हूं इस विश्वविद्यालय के बारे में अभी वाजपेयी जी ने बताया, एनईपी सही मायनों में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस दिशा में बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। मैं यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने उद्देश्यों में निरंतर सफलता प्राप्त करें। यही बात कह करके मैं अपनी बात आप सबको धन्यवाद देते हुए यही पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।